Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Father. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Ravana Shandori Andanamari Beshikindini Mira Handalavara Shandaravara Bushikandana. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Dhanyavad Yeshu. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Dhanyavad Yeshu. Dhanyavad Yeshu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dhanyavad Yeshu. Thank you, Jesus. Dhanyavad. Glory to Jesus. Glory, glory, Mahima Tarif. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Ravana Shandori Andana Mare Kendele Virahandana Rava Shandra Vara Reboshe Kendele Merahandana Mare Mondono Shikandana Mare Kendele Virahandala Vara Mondono Shandana Rihandala Vare Mondono Shandana Amen. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, महिमा, तेरी तारीफ हो खुदावंद राजा. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. तेरा धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Ravana Shandori Andana Kindi धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Glory, glory, glory. महिमा, तारीफ. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Father. Hallelujah. धन्यवाद. Glory, glory, glory. महिमा, तारीफ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. स्तुति, महिमा, तारीफ. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. हालेलुया. खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा हो. खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा करते हैं. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. थैंक यू फादर. ग्लोरी टू जीसस. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. जितने लोग जुड़ रहे हैं, हालेलुया, लाइव सेशन को शेयर कीजिए ताकि हम जल्दी से लाइव सेशन को शुरू कर पाएँ और लोग हमारे साथ जुड़ें. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. Thank you, Father. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Ravana Shandori Andanama Rikandalavara Mondono Shikandanama Rekindename. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Glory to Jesus. हालेलुया. हालेलुया. खुदाबंद आपका धन्यवाद करते हैं. खुदाबंद आपकी स्तुति, महिमा, आपकी तारीफ करते हैं. खुदाबंद प्रभु जी, जल्दी से जल्दी हालेलुया शेयर करें, शेयर करें. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. धन्यवाद. थैंक यू फादर. धन्यवाद यीशु. जल्दी से लाइव सेशन को शेयर कीजिए ताकि और लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े. हालेलुया. और जल्दी से हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो दुनिया के शोर शोर तक वचन के अनुसार जो है वो बांटें. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस क्राइस्ट. आमीन. धन्यवाद यीशु. लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आमीन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. रावण शांदोरी अंदर हमारे खिंदिने में
रहंदलवारा बोनो शिकिंदे में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, खुदावंद यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आवाना शांदोरी अंदर हमारे खिंदिन में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि हम खुदा के कलाम को जो है वो शुरू कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। स्तुति महिमा आपकी, तारीफ हो खुदावन। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा तारीफ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा तारीफ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रिबना शांदोरी अंदर हमारे केंद्र में रहंदल बरा बरा वशंदर बरा रिबोश केंद्र में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा तारीफ। ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। रबना शांदोरी अंदर हमारे केंद्र में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। और रबना शांदोरी अंदर हमारे केंद्र में रहंदल बरा बरा बशंदर बरा रिबोश केंद्र में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा आपकी, तारीफ हो खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया, आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति महिमा आपकी, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जिंदा लहू की जय, मेरे परमेश्वर पिता के लहू की जय। हालेलुया। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु है, तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा तारीफ तारीफ तारीफ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा तारीफ। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी। हालेलुया, ताकि लोग हमारे साथ जुड़े और खुदावंद के नाम की महिमा को कर पाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वाला शंदोरी अंदनमा रिखंदलवारा मंदोनो शिखंदनमा रेखिंदेने में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। रिहंदलवारा मंदोनो शिखंदनमा रेखिंदेने में। अंदलवारा मंदोनो शंदनमा रेखिंदेले अंदलवारा वरा शंदलवारा रिबो शिखिंदेने में। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रिबो रिबो शंदलवारा रिबो शिखिंदेने में। रहंदनमा रहंदिले बिरा बो शिखिंदनमा रेखंदनमा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर बात के लिए धन्यवाद। सारी महिमा परमेश्वर के नाम को। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति महिमा तारीफ तारीफ तारीफ। हालेलुया। रबना शंदोरी अंदर हमारे खिंदेने में रहंदलवा रव रव शंदरवारा रे बोशे खिंदेने में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज खुदावंद से अपने लिए सामर्थ मांगिए। जो भी वचन का बीज यहाँ बोया जाए, खुदावंद के नाम की जो भी महिमा हो, खुदा वचन से द्वारा हो करके बातचीत करे। हालेलुया। आज हर एक परेशानी, हर एक बीमारी, हर एक जो भी हमारे जीवन में है, वो वचन के द्वारा
खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज हम छुटकारा पाए, बंधनों से आज़ाद होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम फर्स्ट प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। और आज के जो लाइव सेशन को है वो शुरू करते हैं। हालेलुया। खुदावंद के नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, खुदावंद यीशु के नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। चलिए आज हम फर्स्ट प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद प्रभु जी। आपकी हजूरी में आते हैं, अपने आप को दिन छोटा नम्र करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। अपने गुनाहों का, अपने पापों का अंगीकार करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। हमें खुदावंद प्रभु जी अपनी सामर्थ से भरिए, अपने अभिषेक से भरिए, ताकि खुदावंद प्रभु जी आज जो भी यहाँ पर कलाम जो है वो प्रभु आपके बेटे बेटियों के बीच में बांटा जाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। मेरे द्वारा होकर के बातचीत करना मेरे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा खुदावंद बच्चों से बातचीत करना मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको होली स्पिरिट वेलकम करते हैं। हालेलुया। स्थान पर, इस जगह के ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं खुदावंद प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वप्रथम आपको स्थान देते हैं मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक उन कार्यों के लिए खुदावंद जो आज तक आपने हमारे जीवनों में किए हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपकी महान करुणा है खुदावंद प्रभु, आपकी महान दया है मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हम पर है मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। ताकि हम खुदावंद प्रभु जी आपके पीछे हो ले मेरे खुदावंद प्रभु जी। हमें कोई लायकत नहीं है खुदावंद, क्योंकि प्रभु अपने वचन में कायम, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके लहू की सामर्थ को इस जगह के ऊपर मांगते हैं मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। इस पेज को खुदावंद प्रभु जी ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी, इस पेज के जो फाउंडर हैं खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया, पास्टर चरणजीत सिंह कंबोज जी मेरे खुदावंद प्रभु जी, उन्हें बहुतायत से आशीषित करना मेरे खुदावंद प्रभु जी, उनके मिनिस्ट्री को बढ़ाना मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी, दुनिया के कोने कोने तक खुदावंद प्रभु जी पेज के द्वारा खुदावंद प्रभु जी जितने भी दास दासियां खुदावंद प्रभु जी यहाँ पर प्रचार करते हैं, दुनिया के शोर शोर तक खुदावंद प्रभु जी आपका जो कलाम है वो पहुंचने पाए। और जिन तक खुदावंद प्रभु जी आज तक आप खुदावंद प्रभु जी ये कलाम नहीं पहुंचा है खुदा, जो आपको नहीं जानते मेरे खुदावंद प्रभु जी, उन तक आपका कलाम पहुंचने पाए मेरे खुदाया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो मेरे परमेश्वर। एक एक को खुदावंद प्रभु जी टच करना मेरे खुदावंद प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा मेरे खुदावंद डिलीवर करना मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो राजा, महिमा तारीफ हो मेरे खुदावंद प्रभु जी, आपकी वडियाई हो मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से खुदावंद प्रभु जी। अपने आप को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। और प्रभु जी जितने भी आपके बेटे बेटियां जुड़े और जुड़ने वाले हैं खुदावंद प्रभु जी, ऑफलाइन भी देखें खुदावंद, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदावंद प्रभु जी से लाइव सेशन को शुरू करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपती हूँ। छोटी सी प्रार्थना विनती को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु के नाम की वडियाई हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए हम कलाम की ओर जाएंगे। आज का जो हमारा कलाम है, हालेलुया, हम उसकी ओर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की वडियाई हो। हालेलुया। आज का जो कलाम है, हालेलुया, विश्वास करती हूँ कि आज का जो कलाम है वो हम सबको खुदावंद यीशु के नाम में डिलीवर करेगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम सामर्थ्य पाते हैं, वचन के द्वारा ही हम डिलीवर होते हैं, वचन के द्वारा ही हमें जो है वो हमारे जो जीवन के कार्य हैं वो सफल होते हैं। हालेलुया। ये वचन को हम सर्वप्रथम जो स्थान है वो देते हैं। हालेलुया। आइए हम कलाम की ओर जाएंगे। हम निकालेंगे मरकुस उसका 1 अध्याय, मरकुस उसका 1 अध्याय, उसकी हम 40 से लेकर के 45 आयत तक आज हम सीखेंगे। मरकुस
मार्क 1 उसकी 40 से 45 वर्सेस तक आज हम देखते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु का। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। वचन यहाँ पर क्या हमें सिखाता है कि कोढ़ के रोगी को चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोढ़ के रोग को चंगा किया गया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। लेकिन आज भी क्या है, प्रभु यीशु हमारे बीच में होकर के हमको चंगा करते हैं, हमारे बीच में होकर हम कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा जो है वो हमें चंगा करता है। हालेलुया। लेकिन उसमें क्या है कि जिस प्रकार कोढ़ी ने, जो कोढ़ी है, कोढ़ी के जो मांगने का तरीका है, कोढ़ी कैसे शुद्ध हुआ, कोढ़ी को चंगाई कैसे मिली, आज हम वो सीखेंगे। क्योंकि अधिकतर हमको मांगना नहीं आता, हम परमेश्वर के सामने कुछ कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है, हमसे वो चीज चाहता है कि जो कि परमेश्वर की इच्छा से हो, परमेश्वर की मर्जी से हो। हालेलुया, है ना। तो आज हम इस कोढ़ी के जीवन से एक बहुत अच्छी बात को सीखेंगे कि हमको मांगना किस रीति से है। हालेलुया। लिखा है एक कोढ़ी उसके पास आया। एक कोढ़ी जो है किसके पास आया, यीशु के पास, है ना। जब वो एकांत में प्रार्थना करने के बाद प्रचार करने के लिए राजनौलम में जा रहा था, और तो जाते जाते क्या हुआ, एक उसके रास्ते में क्या मिला, कोढ़ी मिला। एक कोढ़ी उसके पास आया, है ना। तो जब एक कोढ़ी, सबसे पहला पॉइंट है प्रभु के पास जाना। हमारा सबसे पहला सीखने का जो पॉइंट है वो क्या है, प्रभु के पास जाना। प्रभु के पास जाने का मतलब ये है कि एक कोढ़ी उसके पास आया, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास नहीं आया, कोढ़ी उसके पास गया। यानी आज अगर हम देखें अपने जीवन में, अगर हम देखें तो हम एक कोढ़ी की तरह ही हैं, चाहे हम आत्मा से हो चाहे शरीर से हो, कैसे भी हो। हालेलुया। अगर हम प्रभु को समय नहीं दे पा रहे हैं, ये भी एक कोढ़ है। अगर हम प्रभु के लिए कुछ नहीं दे पा रहे हैं, आलस है, सुस्ती है, बीमारी है, कुछ भी है। हालेलुया। आज हमें इस कोढ़ी के जीवन से यही सीखना है कि हमको किस रीति से मांगना है। उसने किस रीति से मांगा और प्रभु ने किस रीति से दिया, और उसने जो चंगाई है वो कैसे पाई। हालेलुया। एक कोढ़ी प्रभु के पास आया। सबसे पहला पॉइंट है प्रभु के पास जाना। कोढ़ी पास गया ना, तो हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रभु के पास जाना। प्रभु के पास जाना, पास जाने का मतलब ये है कि जब हम चर्च में नहीं, चर्च में हम हर संडे जाते हैं। हालेलुया। हर संडे की संडे हम जाते हैं, लेकिन जब हम घर में होते हैं, अपने घर में होते हैं, तब हम प्रभु के पास कितना जाते हैं, मैटर ये करता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना मैटर, कितना ये जिसको कितना हम परमेश्वर की हजूरी में, कितना हम उसकी प्रेजेंस में समय निकाल पाते हैं। हालेलुया। मैटर ये करता है। हालेलुया। जब कोढ़ी उसके पास गया, परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाता है, कोढ़ी तब ठीक होता है क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर उसके पास नहीं आता। हालेलुया। वो तो अपना काम करने के लिए जा ही रहा है, लेकिन कोढ़ी उसके पास गया। सबसे पहला पॉइंट है प्रभु के पास जाना, मतलब प्रभु की हजूरी में बैठना। अब यहाँ पर कई लोग मैं खुद भी ऐसे बोलती हूँ कि जैसे हमारा मन जो है वो कभी कभी प्रार्थना में नहीं लगता, हमारा मन जो है कभी कभी वचनों में नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं कि उस जहाँ पर हम प्रभु के लिए स्थान बनाया है, जहाँ पर हम परमेश्वर के सामने घुटने टिकाते हैं, जहाँ हम बैठते हैं, हमको वहाँ पर जाके बैठ जाना है। बस हमको वहाँ पर जाके कुछ देर के लिए बैठ जाना है, प्रभु के पास जाना है। क्योंकि जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं वो स्थान जो है वो एक तरह से क्या होता है, वेदी होता है। हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हमसे प्रार्थना नहीं हो पा रहा। दूसरा पॉइंट क्या है, विनती करना।
उससे विनती करी। पहले क्या बोलता है कि एक कोढ़ी उसके पास गया, उससे विनती की। उससे क्या की? विनती की। पहले हम प्रभु के पास जाएंगे, फिर उससे हम क्या करेंगे? विनती करेंगे। क्या विनती करेंगे? ये कि ये दे दो प्रभु, हमें वो दे दो, हमें इस चीज की जरूरत है। नहीं, हमें क्या विनती करना है कि अगर मान लीजिए कि हमसे प्रार्थना नहीं हो पा रहा, या हमसे वचन को मनन नहीं हो पा रहा, या हम वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें उससे विनती करना है। विनती क्या करना है? कि प्रभु हमारी मदद कर। प्रार्थना नहीं करना। विनती और प्रार्थना में फर्क होता है। हालेलुया। विनती क्या चीज है? विनती क्या होती है कि जैसे हम किसी से कोई बात करते हैं, हालेलुया, हम जैसे आपस में किसी से बात करते हैं, है ना, कि अगर हम किसी दूसरे से जब हम बात करते हैं तो उससे हम प्रार्थना करके बात थोड़ी करते हैं, हम सीधे नॉर्मली बात करते हैं। तो परमेश्वर से नॉर्मली हम बात करेंगे। बात करने का मतलब है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा है, प्रभु मेरे जीवन में वैसा हो रहा है। एक मतलब जैसे एक रिलेशनशिप में हम उससे बात करेंगे परमेश्वर से, प्रभु ऐसा है कैसा है, तो आप बताइए कि मैं कैसे करूं। हालेलुया। उसको विनती कहते हैं। परमेश्वर ने जब वो कोड़ी को शुद्ध किया तो कोड़ी ने उससे विनती करी। कोड़ी ने प्रार्थना नहीं करी वहां पे कि हे प्रभु मुझे चंगा कर दे, हे प्रभु मैं कोड़ी हूँ, ऐसा नहीं हो, लिखा नहीं हुआ है ऐसा। उसने बोला है कि उसने विनती करी, मतलब उसने उससे कहा। लेकिन कहा भी क्या कहा? हालेलुया। लेकिन कहा भी क्या उससे? आगे देखते हैं। और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? घुटने टेकना। प्रभु के सामने घुटने टेकना। वो घुटने पे आया क्योंकि वो दुखी था, वो बीमार था, उसको जरूरत थी उस टाइम पर। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। सिर्फ क्या बोला उसने कि वो उसके पास गया, उससे विनती करी। उस विनती के अंदर उसने घुटने टिकाए। पहले उसने क्या किया? घुटने टिकाए परमेश्वर के सामने। तो क्या आज हम घुटने टिकाते हैं? कई लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे घुटने में दर्द है, मेरी टांगे सुन्न हो जाती हैं। नहीं, अगर चोट लग जाए वो बात अलग है, लेकिन यही तो बात है कि ज्यादातर घुटनों पर नहीं बैठा जाता। ज्यादातर क्या होता है? घुटनों के ऊपर नहीं आया जाता। तो घुटने के अंदर आने के लिए हमको कोशिश करना है। हमको क्या करना है? कोशिश करनी है। चाहे हमारे दर्द हो, चाहे हमारी टांगे सुन्न रहती हो, चाहे वो झंझनाहट हो, कुछ भी हो, थक जाए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 या 3 मिनट तो घुटने पर आ ही सकते हैं ना। धीरे धीरे उसको बढ़ा ही सकते हैं ना। लेकिन घुटने पर आने का क्या मतलब होता है? घुटने पर जो आना होता है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग पता क्या होता है? घुटने पर आने का, घुटने पर आने का मतलब होता है कि परमेश्वर के सामने दीन होना और परमेश्वर के साथ जो है वो एक अपने रिश्ते को कायम करना, अपने आप को पूरी तरह से खुदावंद पर निर्भर हो जाना, उसकी मर्जी के साथ जो है वो उसकी मर्जी के साथ चलना, उसकी मर्जी से जो कुछ भी आप बोलते हो, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। घुटना मतलब ये है। हालेलुया। घुटने पे आने का मतलब ये है कि पूरी तरह से प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाना। इसीलिए ज्यादातर घुटनों पर नहीं आया जाता। क्या हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं? क्या हम प्रभु पर विश्वास करते हैं? क्या हम ये, अगर हम अपने जीवन से देखें, क्या हम कर पाते हैं? थोड़ी सी दिक्कत आती है तो विश्वास डगमगाने लग जाता है। हालेलुया। थोड़ी सी दिक्कत आए तो विश्वास क्या होता है? डगमगाने लग जाता है। तो क्या हम घुटनों पर आ पाते हैं? घुटनों पर आ पाते हैं? नहीं। थोड़ी देर आएंगे, टांगे थक जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए घुटनों पर नहीं आया जाता। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें उसके सामने जो है वो घुटने टिकाना जरूरी है। अगर घुटने टिकाएंगे तो धीरे धीरे वो जो उसका समय है घुटने का, वो बढ़ता चला जाएगा। फिर जो रिजल्ट आएगा, हालेलुया, वो फिर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो वो क्या हो सकता है। हालेलुया।
अधिकतर जो है वो परमेश्वर के दास और दासियों ने बाइबल घुटनों से भरी हुई है, घुटनों के ऊपर खुदा के दासों ने घुटनों पे आ कर करके जो है वो खुदा से बातें कर रखी हैं, प्रार्थनाएं कर रखी हैं। हालेलुया। मुंह के बल आके, हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर हमें घुटनों पर आने के लिए इसलिए कहता है। तभी यहाँ पर लिखा है कि एक कोढ़ी उसके पास आया। पहला पॉइंट है कि पास जाना। पहला पॉइंट क्या है? पास जो है वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि विनती। पहले उसके पास जाओ, थोड़ी देर नहीं प्रार्थना करने का मन करता, उस स्थान पर बैठो जहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उस स्थान पर जस्ट बैठो, धन्यवाद बोलते रहो, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। फिर उससे क्या करो? विनती करो। विनती मतलब क्या बताया कि उससे बातचीत करना। विनती मतलब बातचीत करना, प्रार्थना करना नहीं। विनती मतलब मतलब बातचीत करना। जैसे हम जब किसी के साथ कुछ बात करते हैं, मान लीजिए जैसे मान लो हम अपने पास्टर जी के पास जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, हालेलुया। जैसे हम अपने पास्टर के पास जाते हैं तो हम पास्टर जी के सामने कोई प्रार्थना थोड़ी करने लग जाते, क्या बोलते हैं? उनसे विनती करते हैं कि मेरे इस विषय के लिए क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो वो प्रार्थना करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि विनती मतलब प्रभु के सामने भी ऐसे ही बोलना है कि उसे अपने जितनी भी अपनी बातें हैं, जितना भी हमारे जीवन में जो भी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया, विश्राम दूंगा। जब अब विश्राम अगर आप हमें और मुझे और आपको पाना है तो हमें घुटनों पर भी आना पड़ेगा, उससे विनती भी करनी पड़ेगी, उसके पास भी जाना पड़ेगा। बिना उससे कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमें खुद को भी मेहनत करना रहता है, हमारी खुद की भी मेहनत होनी। ये देखो ना, कोढ़ी की खुद की मेहनत है। हम आज कोढ़ी के जीवन से क्या सीख रहे हैं? ये कोढ़ी की क्या है? मेहनत है। हालेलुया। उसके पास गया, उससे विनती करी और घुटने पर आया, और उसके बाद उसने क्या बोला? देखो, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में जो यहाँ बाइबल में आयत है ना, वो क्या है? यदि क्या बोला उसने? घुटने पर आकर के। ये बहुत ही अच्छी जो है वो हमारे जीवन में सीखने वाली बात है। और जब हम इन बातों को सीखेंगे, डेफिनेटली हमारे जीवन में जो है वो इसी वचन के द्वारा हमारे जीवन के जो कार्य हैं, बंधन है, हर एक चीज वो खुल जाएगी, हर एक बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। क्या बोलता है वो? यहाँ पर कोढ़ी ने कोई भी प्रार्थना की है? अगर की है तो बताएं। नहीं, उसने विनती की, और विनती भी क्या करी? देखो, विनती करने के द्वारा वो चंगा हुआ। विनती क्या की है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मतलब वहां पर ये नहीं बोला गया, अगर देखा जाए तो कोढ़ी ने यहाँ पर ये नहीं बोला कि प्रभु देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी को ये बात पता है कि कोढ़ की जो प्रॉब्लम होती है वो कितनी खतरनाक होती है। एक बंदे का दूसरे बंदे के पास जाना नामुमकिन है। हालेलुया। लेकिन तो कितना वो दर्द में था, उसे तो ये चीज होना ही नहीं चाहिए थी, ये बात उसके पास तो होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है वो? यदि तू चाहे तो, हालेलुया, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मतलब उसने यही वर्ड्स बोले, यही उसकी विनती है, यही उसकी प्रार्थना भी है। यदि तो अब इस लाइन में अगर देखा जाए तो इस लाइन में जो मेन जो वर्ड्स है वो पता क्या है? तू है। तू शब्द, तू का मतलब पता यहाँ पर क्या है? खुदा की इच्छा। हालेलुया, खुदा की मर्जी। अगर मान लीजिए अगर कोढ़ी यहाँ पर कहता कि परमेश्वर मैं बहुत दुखी हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में ये है, परमेश्वर मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे कोढ़ निकला हुआ है, तू मुझे चंगा कर, क्या यहाँ पर उसने बोला? उसने नहीं बोला। उसने क्या बोला? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सके। तो का मतलब क्या है कि अगर तू चाहे तो, मतलब अगर तेरी इच्छा है तो ठीक कर, नहीं अगर तेरी इच्छा है तो मत कर। तो का मतलब ये है, यानी यहाँ पर परमेश्वर की जो इच्छा है, कोढ़ी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की इच्छा से मांग रहा है। कोढ़ी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा से मांग रहा है। समझ में आया?
मुझे और आपको यहाँ पर ये समझना है कि जब हमें मांगना है तो हमको किस रीति से मांगना है, जैसे कोढ़ी ने मांगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम हमारे जीवन में मान लीजिए है ना कि फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है ना, या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, हमारे पास फाइनेंशियल पैसा कम है, या घर की है, या बीमार है, जो कुछ भी है, तो हम बजाय इसकी ये खुदा से विनती कर सकते हैं कि हे खुदा, यदि तू चाहे तो मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर सकता है, मेरे बिजनेस को ब्लेस कर सकता है, मेरी आराधना को, मेरी प्रार्थना को ब्लेस कर सकता है परमेश्वर, यदि तू चाहे तो। हालेलुया, मुझे बढ़ा सकता है, आत्मा में बढ़ा सकता है, हालेलुया, है ना, अपनी महिमा में बढ़ा सकता है। जो भी हमारे जीवन में दिक्कतें परेशानियां हैं, उन परेशानियों को इस रीति से, हालेलुया, हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं वचन के द्वारा। इस वचन को क्लेम करते हुए, हालेलुया, इस वचन को क्या करते हुए, मानते हुए, हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं, वो हमारे पास नहीं आएगा। देखो, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब तक वो हमारे पास आया, हमें ढूंढता हुआ आया। आमीन, हालेलुया। जब तक हम अंधकार में थे, है ना, जब तक हम मूर्ति पूजा में थे, हालेलुया, संसारिक रीति से हम चलते थे, हालेलुया, तब वो हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आया था। लेकिन जब हमने उसे ग्रहण किया, जब हमने उसको जान लिया, पहचान लिया कि सच्चा और परमेश्वर जो है वो केवल यीशु मसीह ही है, तो हमें उसके पास जाने की ज़रूरत है। वो बार बार थोड़ी हमारे पास आएगा। उसने तो एक बार आके हमारे जीवन को बचा लिया। उसने एक बार आके हमारे जीवन को क्या किया, बचा लिया। हमें कोई खूबी नहीं, उसने हमको बचाया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो इसका मतलब परमेश्वर ने हमको बचाया। हालेलुया। हम कहीं पर भी फंसे हुए थे, हालेलुया, हम कहीं पर भी थे, जिन जिन जगहों पर थे, उन जगहों में से हम सबको वो खींच के लेके आया अपनी तरफ, हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर के पास जाने की, अब हमें, जब हम प्रभु में हैं, तो हमें जाने की ज़रूरत है उसके पास। हमें उससे विनती करने की क्या है, ज़रूरत है, हालेलुया। तो फिर उसने क्या बोला, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तब उसने क्या किया, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। अगर लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के प्रभु के सामने प्रार्थना करने बैठ जाएंगे तो हमें क्या लगता है वो हमें देगा? नहीं, नहीं देगा वो। क्यों? अगर कोई बीमार है, मान लीजिए अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए मैं प्रार्थना किए जा रही हूँ, भाई उसका जब टाइम आएगा तब वो हील करेगा, हालेलुया। क्योंकि बीमारी जो होती है या कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे जीवन में, दुख जब भी आते हैं ना, वो हमें बढ़ाते हैं। दुख किस लिए आते हैं? मसीह में होके, पहले नहीं, मसीह में। जब हम मसीह में होते हैं, जब भी हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख, तकलीफ, परेशानी आती है, तो क्या रहता है कि जब वो परेशानी चली जाती है ना, तो नोटिस करना कि एक आशीष भी हमारे जीवन में आती है, हालेलुया। वो चाहे परमेश्वर में बढ़ना हो, चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन में, हालेलुया। अब ये बंदा यहाँ पर क्या है, बीमार है, कोढ़ है ना, कितना खतरनाक इसको बीमारी है। जितनी इसकी खतरनाक बीमारी है ना, उतनी ज्यादा तो इसके जीवन में प्रार्थनाएं होनी चाहिए थी, हालेलुया। लेकिन उस परमेश्वर ने, जब परमेश्वर के सामने बस इतनी सी बात रखी कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, लेकिन अगर तू नहीं तो का मतलब है कि अगर नहीं भी तू करेगा तब भी कोई बात नहीं है, हालेलुया। तो हमें भी ऐसा ही होना है परमेश्वर के सामने। यदि तू खुदा मुझे आगे बढ़ाना चाहता है तो तेरी इच्छा पूरी हो, मतलब यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध की जगह हम क्या रख सकते हैं, अपनी तकलीफों को, मेरे फाइनेंस को बढ़ा सकता है, मेरे बिजनेस को बढ़ा सकता है, मुझे इस्तेमाल कर सकता है। खुदा तू मुझे सेवकाई में आगे बढ़ा सकता है, यदि तू चाहे तो। आज इस लाइन को एक प्रोफेटिक वर्ड लेके चलना, नॉर्मल नहीं, प्रोफेटिक वर्ड्स लेके चलना, ये कि यदि परमेश्वर तू चाहे तो मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। वचन कहता है, वचनों के द्वारा ये प्रार्थना जो हमारी होनी चाहिए,
वचनों के द्वारा हमारी विनतियां होनी चाहिए। हालेलुया। शुद्ध जो वर्ड्स है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। अगर सोचा जाए हमारे जीवन में प्रॉब्लम ना हो, मान लीजिए कि परमेश्वर हमें सारी की सारी जो हमारी परेशानियां दिखते हैं वो सब कुछ ठीक कर देता, हमारा जीवन सब कुछ, तो क्या हम परमेश्वर के पास जाएंगे? क्या हम उसको याद करेंगे परमेश्वर को? नहीं। परमेश्वर कोई ना कोई ऐसी चीज वो हमारे जीवन में रख छोड़ते हैं कि पर मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो। और अक्सर हम यही करते हैं। अरे हम लोग तो दुखियों में, परेशानियों में भी उसे छोड़ देते हैं, उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। मतलब ये है कि जब उसने ये चीज बोली तब उसने उस पर क्या किया? तरस खाया। खुदावंद ने तब उसके ऊपर क्या किया? तरस खाया। हालेलुया। और उसकी ओर क्या किया? हाथ बढ़ाया। उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे क्या कहा? देखो इस 41 में क्या है? पहला वर्ड है कि तरस खाया, दूसरा क्या है? हाथ बढ़ाया, और तीसरा क्या है? उसका छूना। एक ही आयत में हमें कितनी सारी चीजें जो है वो हमें परमेश्वर करके दे रहे हैं कि मतलब उस तरस खाया। जब हम ऐसी प्रार्थना को करेंगे, जब हम ऐसी विनती को करेंगे, तब वो हम पर तरस भी खाएगा, हमारी और हाथ भी बढ़ाएगा, और हमें चंगा भी करेगा, हमें छूकर, और हमें हमारे छुटकारे भी होंगे, बंधन भी टूटेंगे, हर एक चीज होगी। और होगी किसके द्वारा पता है हमें? मुझे और आपको पता है ये बात? हमारे खुद के द्वारा। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला कि तो अपना मुख पसार तो मैं उसे क्या कर दूंगा? भर दूंगा। हालेलुया। तो अपना मुख पसार तो मैं उसे क्या करूंगा? भर दूंगा। हालेलुया। अगर हम बोलेंगे, हम अगर अपने मुख को खोलेंगे, तभी वो हमारे जीवन में काम क्या है? करेगा। मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। मतलब जब उसने परमेश्वर की इच्छा से जब उस कोढ़ी ने मांगा, तब उसने क्या बोला कि मैं चाहता हूं। देखो हालेलुया। कितनी कितनी बड़ी बात है कि हमें आज सीखने के लिए क्या मिल रहा है कि कोढ़ी क्या बोल रहा है कि यदि तू चाहे तो, और प्रभु यहाँ क्या बोल रहे हैं? मैं चाहता हूँ। हालेलुया। जब हम इस कोढ़ी के जीवन से जब हम सीख करके उस अपनी परिस्थिति को उसके सामने रखेंगे, तो क्या वो नहीं देगा? हालेलुया। इस बात को मुझे और आपको ये समझना है क्या? यदि तू चाहे तो, और मैं चाहता हूं। क्या? तो के बाद क्या लिखा है? मुझे शुद्ध कर सकता है, और नीचे क्या लिखा है कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। इन दोनों की वार्तालाप देखी, समझी? इन दोनों की वार्तालाप, मतलब वार्तालाप मीन्स बातचीत। हालेलुया। विनती देखी, उस कोढ़ी की विनती देखी। कितना जबरदस्त हमें परमेश्वर ने यहाँ पर सिखाया है कि मुझसे अगर मांगना है आपको तो किस रीति से मांगना है। हालेलुया। कोढ़ी का बोलना और प्रभु का देना यहाँ पर साफ साफ जाहिर कर रहा है कि हमें हमारे जीवन में किस रीति से हमको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, किस रीति से उससे बातचीत करना है, और किस रीति से उससे बोलना है, मांगना है, और किस रीति से उससे लेना है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। देखिए तब और तुरंत 42 में क्या लिखा है? और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। उसके जीवन में कितना बड़ा कार्य, और सोचो कितना वो दर्द में, कितना वो तकलीफ में था। हालेलुया। और वो एक ही तुरंत का मतलब है कि उसी घड़ी, मतलब उसी समय चंगा हो जाना। हालेलुया। तब उसने 43 आयत क्या कहती है? तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। उसे चिताकर तुरंत विदा किया, मतलब उसने उसे जाने के लिए बोल दिया, अपने घर पर जाने के लिए बोल दिया। लेकिन उसके बाद 44 में क्या होता है? और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। ऐसा प्रभु ने क्यों बोला? ऐसा प्रभु ने क्यों बोला कि जाकर याजक को दिखा? हालेलुया। ऐसा क्यों बोला? इसका हम अगर हम देखें तो
जो पुराने नियम है, पुराने नियम में जब हम देखते हैं लय व्यवस्था के अंदर जो हमारा शायद 14 अध्याय है ना, 14 अध्याय है, उसके बीच में सब कुछ जो है वो डिटेल में दिया गया है। आप घर जाके उसको पढ़ सकते हो कि याजक को दिखाने के लिए उन्होंने क्यों बोला। हालेलुया, सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था ये जो है वो दी गई थी, है ना, उसमें आप देख सकते हो कि प्रभु ने याजकों को दिखाने के लिए क्यों बोला था। हालेलुया, तो वो बहुत लंबा है, अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम घर जाकर उसको पढ़ेंगे तो उसमें सारी के सारी डिटेल्स वो दी गई है कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला था। हालेलुया, ठीक है, कि याजक उसको देखता था, मीन्स कि जो एक पास्टर, उसको याजक पास्टर मतलब वो जो खुदा के दास हैं, वो उसको क्या करते थे, चेक करते थे। हालेलुया, और जब उनको वो कहते थे कि हाँ तू अब ठीक है, तो मतलब वो ठीक है, वो शुद्ध है, फिर उनके परिवारों में जाके वो जो पुराने नियम की बात है कि वो चीजें जो है वो की जाती थी। हालेलुया, तो वो मूसा की व्यवस्था में जो है वो ठहराया गया था। हालेलुया, तब उसने जब विदा किया और याजक को दिखाने के लिए बोला, फिर याजक ने क्या किया, जा तो शुद्ध है और मूसा के द्वारा ठहराई हुई उस भेंट को चढ़ा और उन पर गवाही हो, मतलब गवाही हो। अब देखो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो है वो उसे क्यों बोला कि मतलब किसी से कुछ मत कहना। क्यों? प्रभु यीशु मसीह डरते थे? नहीं, वो डरते नहीं थे, किसी बात का उनको डर नहीं था। लेकिन क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत सारे लोग, लेकिन वो जो यहाँ पर कोड़ी है ना, वो चुप नहीं रहा। हालेलुया, वो चुप नहीं रहा। उसने क्या किया, प्रभु के देखो मना करने के बावजूद भी उसने क्या किया, नीचे लिखा है कि परंतु वे बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका। इसका मतलब ये है कि प्रभु ने उससे कहा कि किसी से कुछ मत कहना, कि यहाँ क्या हुआ, किसी से कुछ मत कहना। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, प्रचार किया, उस चीज़ का प्रचार किया। हालेलुया, कि मेरे साथ ये चीज़ हुआ। हालेलुया, और उसने बोला जब तू शुद्ध हो जाएगा ना, शुद्ध होने के बाद जब वो भेंट अर्पण हो जाएगी, उसके बाद उन पर गवाही हुई। हालेलुया, फिर भी उस कोड़ी ने इतना प्रचार किया कि मतलब उसे लिखा है कि परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा, मतलब वो बाहर जाकर उसे जंगली स्थानों में रहना पड़ा और चारों ओर से लोग उसके पास आने लगे। हालेलुया, मतलब कि हमको क्या करना है, हमें यहाँ सीखने में क्या मिलता है कि जब हमारे जीवन में कोई भी काम को करते हैं तो हमें उस प्रचार को इतना ज़्यादा फैला देना है कि हालेलुया, कि लोग प्रभु के पास भागे चले आए। इसलिए नहीं कि वहाँ पर देखा जाए तो ये भी चिन्ह और चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन फिर भी ये वचन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, प्रभु की इच्छा के द्वारा जो है वो शुद्ध हुआ। हालेलुया, और उसने इस बात की क्या करी, प्रचार किस बात का किया, कि वो शुद्ध किस रीति से हुआ, कैसे हुआ, मतलब अपनी टेस्टिमनी के फैला दी उसने, तब लोग उसके पास आने लगे। आज हमारे जीवन में क्या होता है कि जब भी हमारे जीवन में प्रभु काम करते हैं तो उस टेस्टिमनी को, उन बातों को इतना फैला दो कि वाकई में लोग विश्वास करने लगे कि प्रभु ही हमारा सच्चा जिंदा खुदावंद है। हालेलुया, अगर हम प्रभु के दासों को देखें, देखो वो आया घुटने पे। हालेलुया, वो किस पर आया, घुटने के ऊपर। जब घुटने के ऊपर आके उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, तो बाइबल तो पूरी घुटनों से भरी है। अगर हम प्रभु के दासों को देखें, जैसे दानियल है, सुलेमान है, देखो दानियल 3 बार घुटने पे आते थे। हालेलुया, सुलेमान ने घुटने टेक के प्रार्थना करी। एजरा ने उपवास रख करके प्रार्थना करी, घुटने पे आके प्रार्थना करी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने खुद घुटने पे आकर के मुंह के बल प्रार्थना करी। घुटने पे भी आया और मुंह के बल भी आया। घुटने पर उसने, है ना, दिन रात, मतलब प्रभु ने हमें ये सिखाया है कि हमको प्रार्थना किस रीति से करना है। हालेलुया, अब्राहम ने किया, जोशुआ ने किया, यूहन्ना ने किया, उन्होंने इन सभी ने मुंह के बल प्रार्थना किया। हालेलुया, यदि हम देखें तो इसका लूका उसका 22 अध्याय, है ना।
हाँ, लूका उसका 22 अध्याय उसकी 42 आयत हम देखते हैं ना, इसको हम देखते हैं। लूका उसका 22 अध्याय, हाँ लिखा है, लूका उसका 22 उसकी 42 लिखा है, 41 और 42, देखो 41 और 42। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने खुद क्या किया? प्रार्थना किया, घुटने पे आके प्रार्थना किया। ये कब किया? जब उसे, हालेलुया, कि ये कटोरे को मेरे पास से हटा ले। जब सूली पर चढ़ाया जाना था खुदावंद को, तब उन्होंने क्या बोला? पिता से क्या बोला? विनती करी कि हे पिता, यदि तू चाहे तो, हालेलुया, यदि तू चाहे तो। प्रभु यीशु मसीह खुद पिता से ये बोल रहे हैं कि यदि तू चाहे तो। वहां कोड़ी यीशु मसीह से क्या बोल रहा है? यदि तू चाहे तो, हालेलुया, तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अब यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ी की इच्छा पूरी की, लेकिन यहाँ पर पिता ने यीशु की इच्छा पूरी नहीं करी। फिर भी वो कटोरा उसके ऊपर से नहीं हटा, क्योंकि वो हमारे लिए था। वो कटोरा कैसे हटा लेते? वो उस कटोरे को कैसे, अगर वो उस कटोरे को यहाँ पर हटा लेते ना, तो आज हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाते, आज हम आजाद नहीं होते। हालेलुया, वो हमारे लिए लहू नहीं बहाता। जिस कार्य के लिए खुदा ने उसे इस जहान में, इस जीवन में हमारे लिए भेजा था, वो कार्य कैसे पूरे होते? लेकिन फिर भी उसने बोला। क्यों बोला? ताकि हम सीख सके इस बात को। लेकिन अगर हमारे जीवन में जो परमेश्वर के इच्छा से काम नहीं होना है, वो नहीं होना है। मान लीजिए अगर कोई जॉब मांग रहा है, हालेलुया, कि खुदा मुझे जॉब दे, मुझे जरूरत है, लेकिन अगर प्रभु से अपनी सेविकाई में इस्तेमाल करना चाहता हो तो किसकी इच्छा पूरी होगी? आपकी, मेरी, और या प्रभु की? प्रभु की इच्छा पूरी होगी। क्या वो फिर वो अपनी इच्छा से जॉब पा सकता है? नहीं, उसको जॉब नहीं मिल सकती। उसको क्या मिल सकता है? प्रभु की सेविकाई। और जॉब से बेटर क्या है? सेविकाई। हालेलुया, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ समझने के लिए कि प्रभु की इच्छा से हमको मांगना है। और वो कैसे होती है? जब भी हम प्रार्थना में बैठे तो यही बोले, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने पिता से ये बोला कि यदि तू चाहे तो। कोड़ी ने बोला यदि तू चाहे तो, यदि तू चाहे तो तब हो। तो हमारे जीवन में क्या होगा? हमारे जीवन में भी वो चीज़ें होने लगेंगी। हालेलुया, मतलब जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से हम जो भी हमारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कुछ भी है, जब भी हम परमेश्वर से मतलब बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? वो देते हैं जो हम उनसे मांगते हैं। निर्भर ये करता है कि हम परमेश्वर के ऊपर हैं, परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर को हम पहला स्थान देते हैं। हालेलुया, यदि हम चाहें, यदि आप चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं कि डैनियल उसका 6 अध्याय उसकी 10 से 11 आयत में मतलब कि आप घर जाके पढ़ सकते हो कि किस रीति से डैनियल ने घुटने टिकाए 3 रीति। सुलेमान उसने 8 अध्याय में उसकी 54 से लेके 56 आयत तक आप पढ़ सकते हो, है ना। एजरा है उसका 8 अध्याय उसकी 21 से 23 आयत तक हम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह की प्रार्थना मार्कुस उसका 1 अध्याय 35 से 39 तक हम पढ़ सकते हैं। मत्ती है उसका 26 की 39 में, मत्ती उसका 26 उसकी 39 निकालते हैं। मत्ती उसका 26 की 39 में, हालेलुया, रबन शंदोरी अंदर हमारे खिंदेले में रहंदला बरामंदन शिखंदन हमारे खिंदेले में 26 की 39 आयत क्या बोलती है? आइए पढ़ते हैं। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मतलब मुंह के बल,
मुंह के बल गिर जाने का मतलब पता है क्या? पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर को दे देना। हालेलुया। अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने अपना अपना समर्पण करना पूरी रीति से, मतलब कुछ नहीं बचा, पूरी रीति से, आत्मा से, शरीर से, A to Z कुछ भी अपने पास नहीं रख छोड़ना। दिल खाली, दिमाग खाली, सब कुछ एनी, कुछ भी नहीं रख छोड़ना। मतलब मुंह के बल गिरना वो है। मुंह के बल क्या किया? हार करके उसने ये प्रार्थना की पिता से, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा किसके लिए पूरी हुई? यीशु मसीह के लिए नहीं, हमारे लिए पूरी हुई। जो आज हम उसे थोड़ी छोटी छोटी बातों पर क्या करते हैं? ठुकरा देते हैं। क्या हम नहीं ठुकराते प्रभु यीशु मसीह को? क्या हम पूरी रीति से परमेश्वर की बातें मानते हैं? क्या उस पर हम निर्भर हैं? हालेलुया। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए उस कोड़ी की तरह आज से ये बात बोलना हमें स्टार्ट करना है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे दे सकता है, डैश डैश दे सकता है, सेविकाई दे सकता है, फाइनेंशियल दे सकता है, बीमारी है चंगा कर सकता है, प्रभु मुझे शुद्ध कर सकता है, प्रभु मेरे बंधनों को तोड़ सकता है, प्रभु मुझे आज़ाद कर सकता है। हालेलुया। इस लाइन को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाए, उठते बैठते चलते फिरते प्रार्थना में आज से इसे एक प्रोफेटिक वर्ड लेके चलना कि भे यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अपनी हर एक परिस्थिति को उसके सामने रखो। हालेलुया। विनती को उसके सामने रखो कि अगर यदि तू चाहे तो परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर सकता है। डेफिनेटली वो हमारे जीवन से हमें पता भी नहीं चलेगा और वो चीज़ें हमारे जीवन से आउट होना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, हमें पता भी नहीं चलेगा प्रभु हमारे जीवन में कब काम कर जाएगा। हालेलुया। क्यों? उसकी जब इच्छा होगी, जब उसका हाथ हम पर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ हालेलुया कि आज मुझ पर इस वचन के द्वारा खुदा का हाथ आ चुका है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप जो भी इस वचन को ग्रहण करेगा, आज जो ये अपने हाथों को उठा करके खुदा से ये कहेगा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है खुदा, यदि तू चाहे तो मेरे जीवन में ये कार्य कर सकता है खुदा। हाँ, अपने अपने हाथ उठा करके आज जो भी इस वर्स को इस वर्सेस को जो कोई भी आज अंगीकार करेगा, आज ग्रहण करेगा, डेफिनेटली आज वो डिलीवर है। हालेलुया। आज वो डिलीवर है यीशु मसीह के नाम से। आज वो डिलीवर है इस वचन के द्वारा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा डिलीवर है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कुछ भी हो। हालेलुया। कुछ भी हो, हम एक मनुष्य हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक हिस्सा नहीं है हमारे जीवन का। हालेलुया। हालेलुया। आज ग्रहण कीजिए इस वर्षिस को, इस आयत को आज ग्रहण कीजिए ताकि खुदावंद का हाथ हम पर आए, ताकि वो हमें छुए, टच करे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ जैसा ही हालेलुया सच्चे मन से आज खुदा को पुकारेगा, खुदावंद मेरे जीवन में यदि तू चाहे तो हम मुझे शुद्ध कर, मुझे बीमारी से आजाद कर, मुझे बंधनों से छुड़ा। आज खुदा का आत्मा से टच करने जा रहा है। इस आयत के द्वारा खुदावंद का आत्मा उन्हें टच करने जा रहा है। हालेलुया। आज जिसकी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो दूर होने जा रही है, बीमारियां दूर होने जा रही है। हालेलुया। सेविकाएं बढ़ने जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 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 रबना शंदोरी अंदना मारे खेंदेले वे हंदला बराबर शंदरा बराबर शिखंदना मारे खेंदेले वे। मेरे परमेश्वर, मैं खुदावंद यीशु मसीह की बेटी होने के नाते खुदावंद इस वचन को इन अपने ऊपर क्लेम करती हूँ। आप आपके जो जितने भी ये बेटे बेटियां आपके खुदावंद जुड़े हुए हैं खुदावंद प्रभु जी, उनके ऊपर खुदावंद रिलीज करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। जो भी ग्रहण करे खुदावंद आपके इस वचन को मेरे खुदावंद प्रभु जी, वो डिलीवर है यीशु मसीह के नाम में, वो आजाद है यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदावंद प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इस वचन को मैं सर्वप्रथम अपने लिए ग्रहण करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सभी लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं नहीं जानती, मुझे
कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि आज इस वर्ष के द्वारा आज़ाद हो। हालेलुया। इतना मैं सरश्योर हूँ इस चीज़ को लेके कि प्रोफेटिक वर्ड है ये आज हम मेरे और आपके लिए कि इस वचन के द्वारा, इस वर्ष के द्वारा हम आज़ाद हैं। हालेलुया। इस वर्ष के द्वारा आज हमारे जीवनों में खुदा की इच्छा पूरी हो चुकी है, खुदा का हाथ हम पर आ चुका है। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you, glory to Jesus, glory to God। रबना शंदोरी अंदना मारे खिंदेने मेरा हंदला बरा बरा शंदरा बरा रेमोशे खिंदेने में मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति महिमा आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद प्रभु जी कि आपने हमसे बातचीत किया खुदावंद प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हमें धोया मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। विश्वास करती हूँ खुदावंद ने हमें धोया है। हालेलुया। अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है। हालेलुया। क्योंकि उसकी इच्छा क्या है हम उसके पास जाएं, उससे विनती करें, लेकिन अक्सर होता क्या है हम दूसरों के पास चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता नहीं बेटा तू मेरे पास आ, तू मेरे से विनती कर और मेरे सामने तू घुटने टिका के मुझसे बातचीत कर, मैं तेरा बाप हूँ। हालेलुया। मैं तुझे दूंगा जो हमें देता है वो परमेश्वर देता है। यदि हम किसी से प्रार्थना भी करवाते हैं तभी भी परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा हमें चंगाई देता है। परमेश्वर हम तब क्या करता, खुद ही तो वो सारे काम करते हैं, तो हम खुद ही उससे क्यों ना बातचीत करें इस कोढ़ी की तरह। हालेलुया। इस व्यक्ति की तरह हम खुद ही उससे क्यों ना बातचीत करें, क्यों ना उससे विनती करें, क्यों ना घुटने टिकाएं, क्यों ना हमें उससे ये बात बोलें कि हाँ खुदा कि यदि तू चाहे तो मेरे जीवन में कर सकता है, ताकि उसका हाथ हम पर आए, वो हमें छुए, हमारी ओर बढ़े। हालेलुया। और हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। हम चंगे हो जाएं, हम शुद्ध हो जाएं। क्या हम शुद्ध हैं? नहीं। हालेलुया। खुदावंद का आत्मा हमें यही चाहता है कि हम उनसे विनती करें, हम खुद परमेश्वर के सामने घुटने टिका करके उससे विनती करें और हम शुद्ध हो जाएं। खुदा खुद चाहता है कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। बात सिर्फ इतनी है कि हमें उसके पास में जाना है। हालेलुया। विश्वास करती इस वचन के द्वारा हमने आशीष पाई है, मैंने भी पाई है और आपने भी पाई है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। जिसका भी कोई भी विषय है आप मुझे दे सकते हैं, मैं 5-10 मिनट आपके बीच में प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मेरे खुदावंद प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो आपने हमसे बातचीत किया। हालेलुया। किसी की भी है अगर प्रेयर रिक्वेस्ट तो आप मुझे बताएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे, बहुत कम शो हो रहे हैं। प्रदीप ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड। मंजोत्रा यदि बीच में है तो हालेलुया। मेरी सेविकाई के लिए प्रार्थना करें, वचन को क्लेम करें। यदि तू चाहे तो खुदा मेरी सेविकाई को बढ़ा सकता है, वो डेफिनेटली बढ़ाएगा। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके बेटे को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। अपने बेटे को अपनी महिमा में इस्तेमाल कर मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। और यदि तू चाहे तो खुदावंद प्रभु जी इसके जीवन में खुदावंद प्रभु जी इस कार्य को कर सकते हैं खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। और अपनी सेविकाई में खुदावंद प्रभु जी ने ऊंचाइयों में लेके जा सकते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। यदि तू चाहे तो ऐसा कर सकता है मेरे खुदा। विश्वास करती हूँ खुदावंद प्रभु जी कि आपने इस प्रार्थना को सुना है और खुदावंद प्रभु जी हालेलुया इस भाई को इस्तेमाल कर लिया है खुदावंद प्रभु जी, इसकी सेविकाई को बढ़ाया है मेरे खुदावंद। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यदि किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है तो प्लीज़ उसको दोबारा से मुझे डालें, क्योंकि मुझे कमेंट शो नहीं हो पा रहे इतने ज़्यादा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा तारीफ करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। दिलीप भाई को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। नंदल्स भाई को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर
अनवर भाई को, अनवर भट्टी को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ब्लेस इन द माइटी, इनकी फैमिलियों को ब्लेस कीजिए मेरे खुदाबंद रजा। हालेलुया, प्रभु तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सीता विलियम को खुदावंद प्रभु जी ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद प्रभु। हालेलुया, यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रावण शंदोरी अंदर हमारे केंद्र मेरा अंदला बरा बराबर शंदरा बरा रे केंद्र में आमीन। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रावण शंदोरी अंदर हमारे केंद्र मेरा अंदला बरा बराबर शंदरा बरा रे बोशे केंद्र में मेरे खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद, धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जितने बेटे बेटी आपके साथ जुड़े हैं मेरे खुदा प्रभु, इन सबको ब्लेस करना मेरे खुदा प्रभु जी। अमीर गिल को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हाले इस वचन के द्वारा ब्लेस कर देते हैं खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, रबन शंदोरी अंदर हमारे केंद्र ने मेरा अंदरमा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, खुदावंद प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को प्लीज़ मुझे फिर से जो है वो टाइप करके सेंड कीजिए। हालेलुया, यदि किसी ने किया है और नहीं बोल पा रही हूँ तो प्लीज़ उसे सेंड कीजिए ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूँ। हालेलुया, ओके, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ओके। नंदलाल जी, नंदलाल भाई जी की प्रेयर रिक्वेस्ट है कि वो चलती गाड़ी से देख रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का आत्मा आपके साथ रहे। हालेलुया, उनके दूतों के बाढ़ आपके साथ लगाती हूँ कि आप चलती गाड़ी से देख रहे हैं। हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे। आपके यही परमेश्वर जो है वो एक डेडिकेशन को देखता है। हालेलुया, आप चलती गाड़ी से देख रहे हैं, ये डेडिकेशन है किसके लिए? खुदा के प्रति। और अगर आप अपने मुख से ये चीज़ें बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यदि तू चाहे तो मेरे पैर के दर्द को चंगा कर सकता है, तो डेफिनेटली क्या होगा आपके आप देखना उसी समय आपका दर्द जो वो गायब हो चुका होगा। आप एक बार अंगीकार कीजिए, कोई बात नहीं, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाइए और कहिए यदि तू चाहे तो प्रभु मेरे पैर को हील कर सकता है। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद प्रभु जी आपके बेटे नंदलाल के लिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। खुदावंद प्रभु जी, सबसे पहले मैं खुदावंद प्रभु आपका लहू जो है वो इस बेटे के ऊपर मांगती हूँ। खुदावंद प्रभु जी, वो आपका बेटा है जो चलती गाड़ी से मेरे खुदावंद प्रभु जी आपके कलाम को सुन रहा है मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद करती हूँ इस डेडिकेशन के लिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, खुदावंद प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे खुदावंद प्रभु जी आपके बेटे का पैर हील हो चुका है, मेरा विश्वास है। आप छूइए, जिस प्रकार आपने कोड़ी को खुदावंद प्रभु जी हालेलुया प्रभु छुआ, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उस पर तरस खाया मेरे खुदावंद प्रभु जी और वो शुद्ध हो गया। उसी रीति से खुदावंद प्रभु जी आप इस बेटे को ब्लेस कीजिए और खुदावंद पैर का दर्द इसी घड़ी इसी समय जड़ से खत्म हो जाए मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद प्रभु जी गवाही के लिए तैयार है मेरे खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप ब्लेस है, आप हील है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, धन्यवाद, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा तारीफ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, ग्लोरी टू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, धन्यवाद। रावण शंदोरी अंदर हमारे केंद्र मेरा हंदला बराबर भूषंदरा बरारी भूषे केंद्र में, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी की और प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, खुदावंत के नाम की महिमा हो, खुदावंत के नाम की महिमा हो, खुदावंत का नाम ऊंचा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रबना शंदोरी अंदर हमारे केंद्र ने मेरा अंदला बराबर बशंदरा बरारी बोशी केंद्र में, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा आपकी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, इन सभी के खुदावंद प्रभु जी मनों को जांचने पर रखने वाले आप है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। आपकी स्तुति महिमा
आपकी तारीफ करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, जिस वचन को खुदावंद प्रभु जी आपके बेटे बेटियों के ऊपर रिलीज करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी, ताकि खुदावंद प्रभु जी सब के सब खुदावंद प्रभु जी आज अपनी अपनी जगहों पे जाकर ये बात आपसे कहे कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे हील कर सकता है, तू चाहे तो खुदावंद क्या नहीं कर सकता। आज यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। आमीन, हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, जितने परमेश्वर आपके बेटे बेटियों ने आज खुदावंद प्रभु जी कलाम को ग्रहण किया है, कलाम को सुना है मेरे खुदावंद प्रभु जी, आज वो खुदावंद प्रभु जी हील है मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, सचमुच खुदावंद प्रभु जी उनके जीवन से हालेलुया वो हर एक परिस्थिति जा चुकी है जिन परिस्थितियों में वे हैं। मेरे खुदा में आपका धन्यवाद कर, जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मेरे खुदावंद प्रभु जी आपने उनको सुन के उत्तर दिया है मेरे खुदावंद प्रभु जी, और विश्वास करती हूँ खुदावंद प्रभु जी आपने बेटे नंदलाल को हील किया है मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, बेटे प्रदीप की खुदावंद प्रभु जी सेविकाई को बढ़ा दिया है मेरे खुदावंद प्रभु जी। जैसे जैसे आपकी इच्छा है खुदावंद ने आपके जीवन में पूरी करी है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद प्रभु जी इस मिनिस्ट्री के लिए मेरे खुदावंद प्रभु जी, उन दास दासियों के लिए मेरे खुदावंद प्रभु जी जो हर हफ्ते खुदावंद प्रभु जी अपने कलाम को यहाँ पर बांटते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, उन्हें बहुतायत से बढ़ाना मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। सचमुच खुदावंद प्रभु जी दुनिया के शोर शोर तक खुदावंद प्रभु जी इस खुदावंद प्रभु जी उन कलाम को, उन अपनी बातों को पहुँचाना मेरे खुदावंद प्रभु जी अपने बेटे बेटियों के द्वारा, जिन तक खुदावंद प्रभु जी आपका ये कलाम नहीं पहुँचा, जो आपको नहीं जानते खुदावंद प्रभु जी वो आपको जानने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर, आपको ग्रहण करने वाले हो जाए, रूहें बचने वाली हो जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, दुनिया के कोने कोने शोर शोर तक खुदावंद प्रभु जी हालेलुया ये कलाम जाए मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो ऑफलाइन भी खुदावंद प्रभु जी ने रिसीव करेगा खुदावंद उसी घड़ी उसे खुदावंद प्रभु जी हील करना मेरे खुदावंद प्रभु जी, उन पर अनुग्रह करना। हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हालेलुया। हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यदि तू चाहे तो हमें शुद्ध कर सकता है परमेश्वर, हालेलुया। यदि तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता, तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा कर चुका है, हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ, शुरू से लेकर अब तक आप मेरे साथ जुड़े रहे और प्रभु के इस कलाम को हालेलुया ग्रहण किया, सुना, हालेलुया। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ इस पेज के जो चेयरमैन है, फाउंडर जो हैं, जो अपने चरणजीत सिंह कंपोज जी, हालेलुया। मैं उनकी सारी टीम को उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबों के बीच में खुदा के कलाम को बांटूँ, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद परमपिता का, हालेलुया। हम धन्यवाद भेंट चढ़ाते रहें उसको और ये कहते रहें कि यदि तू चाहे तो मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ स्तुति महिमा तारीफ के साथ, हालेलुया। आप सबों को फिर से मेरी ओर से धन्यवाद हो, जय मसीह की हो, हालेलुया। जल्दी मैं फिर से दोबारा से खुदा का कलाम लेके आपके बीच में आऊँगी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। कि आपका प्रेम है, जो हम लोग जो मैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और खुदा की महिमा को हम एक माध्यम है कि दुनिया के शोर शोर तक जाने का, हालेलुया। हम जा तो नहीं सकते लेकिन वचन को इस फ़ोन के द्वारा जो है वो हम पूरा कर सकते हैं, हालेलुया। हम दुनिया के शोर शोर तक जो है वो इस कलाम को पहुंचा सकते हैं। जितने लोग जुड़े हैं वो प्लीज़ इस सेशन को जो है वो लाइव जो है वो उसको ऑफलाइन भी इसको शेयर करना, हालेलुया। ताकि ये भी एक सेविका ही है, अगर आप शेयर करते हो तो ये सेविका ही है, क्योंकि आपका शेयर ना जाने कहाँ जाएगा। और जो इस कलाम को या यहाँ पर दास दासियाँ जितने भी आते हैं, जो भी उस कलाम को सुनेगा वो हील होगा, वो बचेगा, वो रूह बचेगी, उसके अंदर वचन कार्य करेगा, तो आपका वो शेयर होगा, हालेलुया। तो अपने ग्रुपों में शेयर कीजिएगा और अपनी सेविकाई को आगे बढ़ाइएगा। मेरी ओर से सभी को जय मसीह की।